Good morning, everyone, and welcome to the last session of Career-Oriented Diploma course in Communication Skills and Personality Development. The diploma course is focusing upon writing skills, and today on the last day, we have with us Mrs. Rishali Deshpande, who is going to speak on translation studies. On behalf of the Department of English and the IQAC of Sri Binzani City College, let me take this opportunity to welcome Mrs. Rishali Deshpande. Just to give a brief biodata of Rushali Deshpande, I'll take a few minutes time. Basically, she is a science graduate and a postgraduate, and she is working as a professional translator, anchor, compere, copywriter, content writer, script writer, voiceover artist in industry where excellent creative and critical thinking, analytical and skills are required. She writes articles on various subjects and poems published in esteemed newspapers, magazines, and journals. She has her own firm called as Mudra Communications. She has translated around 4 books. One of them is books into Marathi she has translated. One of them is Use Your Head. The other is Optimal Health Revolution. Know Your Limits, Ignore Them, and Notes to Myself by Dr. APJ Abdul Kalam. So all these books she has translated. She is a regular translator for corporate industrial institutes and associates, pharmaceutical companies and medical field, food industry, banks and financial institutes, general companies and magazines, journals, individuals. And she is a copywriter, she is a script writer also. So she has also written quite many brochures. She has designed the leaflets, the documentaries, and has got a vast experience in something that we are going to deal today, that is translation. So without taking much of your time, I invite Mrs. Rushali Deshpande to tell us something about translation skills. She has also assigned a task for us. She has given us a passage and we need to translate it into English. So let us take the cue from her PPT, the presentation that she has made, and move on. Mrs. Rushali Deshpande, I invite you to take this session further. Thank you so much. First of all, before starting with my presentation, I'd like to thank Principal of Sri Binzani College, Dr. Kane Madam, and all the students who are here with me for this presentation and for my talk. It's really an honor and pleasure to be with you today. So I'll start with my presentation. And let me know if you are able to see it, okay? Yes, ma'am, it's visible. Okay. So, first of all, we'll start with translation. Definition of translation, or what do we call it as? Just a minute. I'm going to start from first of my slide. Okay, is it visible? Yes, ma'am, it's visible. Okay. So translation, as we say, we'll start with translation only. In Marathi or in Hindi, we called it as Anuvad or Bhashantar. And what is translation? Translation is communication. Like the very title of this course is communication. So translation is also communication of a meaning of a source text language by means of an equivalent target language text. What is source language text? It is the matter which you get in your hands or on your mails for translation. It is the original script which is to be translated. And what is the target language? Target language is the language in which you will be translating the source text. So source language can be English and target language can be Marathi or Hindi, or either source language can be Hindi or Marathi and target language can be English. This is, I'm talking in context of India. If you are good in foreign languages, then your source language can be any French, German, or some other language, and your target language can be Marathi, Hindi, or English. Generally, the target language is the one in which the translator is more expert or more conversant with. It can be his or her mother tongue also.
and the source language can be a foreign language. Here, foreign language to us is other than our mother tongue or the language we know better. Moving forward, a bit technical thing which you should know is the English word translation is derived from Latin word translatio, which comes from trans, that is meaning trans means across, and fare, transferred, is to carry. That means the translation is carrying across or bringing across something in another language. Okay. Now, what exactly translation is? Translation is a mental activity in which a meaning of linguistic discourse is rendered from one language to another. Like you are given something, some matter, and it's in linguistic discourse means it is some maybe some substance, or maybe some matter, or maybe some poem, or maybe some literature which is given to you, and you are going to translate it into another language. If I have to tell it in Hindi, it means that आपको कोई एक ऐसा मैटर मिलेगा या कोई ऐसा कविता दी जाएगी या कोई साहित्य का अंश दिया जाएगा, और इसे आपको दूसरी भाषा में जिसे आप अच्छी तरह जानते हैं उसमें आपको उसे अनुवादित करना है या उसका भाषांतर करना है। लेकिन भाषांतर करते समय या ट्रांसलेशन करते समय हमें ये याद रखना है कि जो स्टैंडर्ड ओरिजिनल या सोर्स टेक्स्ट का है वही स्टैंडर्ड, इक्विवेलेंट स्टैंडर्ड हमें टारगेट लैंग्वेज का भी रखना चाहिए। वो हमारी ट्रांसलेटर की जिम्मेदारी है। एंड ट्रांसलेशन, एज यू नो, इज अ प्रोसेस ऑल्सो and it is a product also. I have put it in Marathi and Hindi also, the definition कि भाषांतर, when we say the translation is a mental process, मराठी मध्ये भाषांतर ही एक बौद्धिक प्रक्रिया आहे। त्यात दिलेल्या भाषेचा, भाषणाचा किंवा मजकुराचा अर्थ एका भाषेमधून दुसऱ्या भाषेत अनुवादित किंवा सादर केला जातो। हिंदी में कहें तो अनुवाद एक बौद्धिक गतिविधि है जिसमें दिया गया एक भाषाई प्रवचन या विषय, उसका अर्थ एक भाषा से दूसरी भाषा में प्रस्तुत किया जाता है। Now, why do we need translation? What is the need at all? Translation is necessary for spreading new information, knowledge, and ideas across the world. It is absolutely necessary to achieve effective communication between different cultures and also to widen a world view. क्यों जरूरी है ट्रांसलेशन? क्योंकि ऐसी अनेक चीजें होती हैं, ऐसी अनेक कल्पनाएं होती हैं या ऐसी बहुत सी जानकारी होती है जिसे हम जानते नहीं हैं, जो हमें मालूम नहीं होती है या हमारे लिए पूर्णतया नहीं होती है। जब तक कि हम उस बात को सुनते नहीं हैं तब तक कि हमें मालूम नहीं होता है कि ऐसी चीज भी अस्तित्व में है। तो ये सारी चीज अगर दूसरी भाषा में ये सारी चीजें हो रही हैं तो वो हमारी भाषा में भी आनी चाहिए और हमें उसकी जानकारी होनी चाहिए। ये करते समय, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी टू अचीव इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये ट्रांसलेशन करते समय या ट्रांसलेशन की जरूरत क्या है? बहुत इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना। और ट्रांसलेशन हमें एक वर्ल्ड व्यू भी देता है कि दुनिया में क्या हो रहा है। जैसे कई चीजें हैं जो अफ्रीका में हो रही हैं जो कि स्वाहिली भाषा में लिखी गई हैं, वो स्वाहिली भाषा हम जानते नहीं हैं तो हमें कैसे पता चलेगी? तो वो ट्रांसलेशन के जरिए हमें पता चलेगी। जर्मनी में बायोटेक्नोलॉजी के बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं, नई नई खोजें होती हैं, वो हमें कैसे पता चलेगी अगर जर्मन भाषा में लिखी गई हैं? तो ट्रांसलेशन की जरूरत हमें पड़ती है। और हमारे यहाँ भारत में तो इतनी सारी भाषाएं हैं कि हम अगर दक्षिण भारत में चले जाएं तो हमें मलयालम, तमिल, तेलुगु ये भाषाएं हैं जो कि हम ठीक से नहीं जानते हैं अगर हम महाराष्ट्र में रहते हैं और मराठी या हिंदी भाषा बोलते हैं, तो उसका भी ट्रांसलेशन जरूरी है। हमें उस कल्चर का पता चलता है और फिर कल्चर का पता चलने के बाद वो चीजें हम अपने हिसाब से हमें ढाल लेते हैं, हमारी संस्कृति में ढाल लेते हैं। इसलिए ट्रांसलेशन की जरूरत है क्योंकि वो हमें विश्व का, मतलब हमें छोड़कर हमारी आजू बाजू की जो चीजें हैं वो हमारा विश्व होता है, तो उसे जानने का ट्रांसलेशन हमें मौका देता है, समझने का मौका देता है। ओके,
Now next, I'm finding a bit difficulty in transferring the slide. Just a minute. फिर ट्रांसलेशन का प्रोसेस क्या होता है ये मैं बता रही हूँ आपको. इन meanwhile I am able to move forward my slide. Okay. Am I audible? Yes, ma'am, you're audible. Okay. Now what is the Some technical issue, ma'am. Yes. I'm so sorry about it. No, it's okay. Well, now this is the model of translation, how you go for translation or how the translation happens or how you do it. Are you able to see it now? Hello? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah, okay. The first is the source language on your, it is to my left, probably to your left also. Source language, then there's an arrow going downwards. On that arrow line to the left, I have written analysis. In the middle, towards the downside, I have written transfer. And the transfer is going upwards where I have written synthesis, and there is where we reach up to target language. So how it happens is when we get something or source language, say in English, we analyze the sentence, we read the sentence, we read the words, and we analyze it. We analyze it means we are translating it. Like if my name is Brishali, when I read this, my name is Brishali, then I analyze first what is my is me. Name, now, ya naam. Is, hai, and the name Brishali. Now I transfer this thing, I synthesize it in proper sentence, like we normally talk in Marathi considering the grammar, and the translation is in the target language would be माझं नाव है. जैसे कि इंग्लिश में लिखा गया था माय नेम इज वृशाली, सो मेरा नाम है वृशाली will be wrong in Hindi. So I arrange it according to Hindi grammar or Marathi grammar, and then I synthesize it as मेरा नाम वृशाली है या माझं नाव वृशाली आहे. Okay. Now this is also called as, while this is a transfer from source language to target language, it is also equivalence in the language. Equivalence means exact meaning of that word and of that sentence. Certain times you may find that there is a loss of translation. It doesn't happen in simple sentences. It happens in complex sentence or where the culture is different. Like if I give you an example, a bit complex one. Like हमारे यहाँ हल्दी कुमकुम होता है और उसका वर्णन किया गया है हिंदी में या मराठी में, और उसे आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है. तो जैसे एग्जैक्टली प्रोसेस होता है हल्दी कुमकुम का या हल्दी कुमकुम का, तो उसे आप एग्जैक्टली इंग्लिश में ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं क्योंकि कल्चर डिफरेंट है. इंग्लिश में हल्दी कुमकुम के लिए या उस समारोह के लिए त्या समारंभासाठी शब्दच नाही आहे. सो यू हैव टू एक्सप्लेन इट इन सिंपल इंग्लिश की हल्दी कुमकुम क्या है या हळदी कुंकू काय आहे हे तुम्हाला इंग्लिशमध्ये त्यांना ट्रान्सलेट करून द्यायचं असतं, पण ते साध्या सोप्या लँग्वेजमध्ये, आणि त्याच्यात हळदी कुंकूसाठी इंग्लिशमध्ये एखादा पूर्ण वेगळा शब्द नाही आहे, म्हणून आपल्याला ते सगळं त्याचं वर्णन करून सांगावं लागतं आणि त्याच्यात कुठेतरी हळदी कुंकू या शब्दाचं इम्पॉर्टन्स किंवा त्याचा इसेन्स तो जाऊ शकतो. देअर कॅन बी अ ट्रान्सलेशन लॉस. तो ट्रान्सलेशन लॉस मिनिमम असावा याच्याकडे लक्ष देणं हे ट्रान्सलेटरचं काम असतं. नाव ट्रान्सलेशन करताना तुम्हाला कुठल्या कुठल्या स्किल्सची गरज असते, कारण ट्रांसलेशन करणं ही काही सोपी गोष्ट नहीं है, बहुत आसान चीज नहीं है. अगर आप सिंपल सेंटेंसेस में सोचते हैं तो आसान लग सकता है आपको, या आपको लग सकता है कि आप तो हिंदी हमेशा बोलते हैं
मराठी आपली मातृभाषा आहे, आपण रोजच मराठी बोलतो आणि येता जाता आपण आपल्या मित्रांशी इंग्लिशमध्ये पण बोलत असतो, राइट? सो यू मे फील दैट ट्रांसलेशन इज इजी, मैं मराठी भी जानता हूँ, हिंदी भी जानता हूँ और इंग्लिश भी जानता हूँ, तो इसमें स्किल की क्या जरूरत है? So we need to understand that we need to have command over the source language as well as target language. हमें हिंदी बहुत अच्छी तरह से हिंदी की जानकारी होनी चाहिए, हिंदी में निपुणता होनी चाहिए, या मराठीवर आपलं प्रभुत्व असलं पाहिजे, हिंदीवर प्रभुत्व असलं पाहिजे, इंग्लिशवर प्रभुत्व असलं पाहिजे. आणि जर तुम्ही एखादी परकीय भाषे शिकत असाल, फ्रेंच असेल, जर्मन असेल, रशियन असेल, जॅपनीज असेल, चायनीज असेल, तर तुम्हाला त्या भाषेवरचं प्रभुत्व पण असणं आवश्यक आहे. Please tell me if I'm going well. I mean, are you able to understand? Hello? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, okay. So you should have a command over source language as well as target language. You should have word power and grammar also. Like word power means, I'll explain it in the next slide also. You should know as many as words as you can in both source language and target language. And you should know the grammar of source language and target language. Like I said, in English, the composition of sentence is a bit different, the grammar is different, and in Marathi and Hindi, the grammar or the composition of sentence is different. So वो फर्क क्या है ये आपको समझना चाहिए. Secondly, in English you have active voice and passive voice. So वो translate करते and tense also. सो वॉइस एंड टेंस जैसे आप इंग्लिश में समझते हैं वैसे ही आपको हिंदी और मराठी का भी एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस एंड टेंस समझना जरूरी है. नहीं तो अगर आप पास्ट पार्टिसिपल, आपका वर्क पास्ट पार्टिसिपल में है और आप ट्रांसलेट मराठी या हिंदी में प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस में कर रहे हैं तो उसका मीनिंग बहुत ही अलग हो जाएगा. एंड जो राइटर को या स्पीकर को कन्वे करना है दूसरी भाषा में वो आप ठीक से नहीं कर पाएंगे. That is the next point. You should have the ability to transfer style, tone and cultural elements accurately from one language to another language. That is, there are different styles of writing. Somebody will write in simple sentences. Some may write in complex sentences. Some may write in simple tone. Some may write using puns. And the cultural elements are always there. Like you will find the cultural elements especially in phrases or idioms, and you should know the idioms and phrases in the source language also and target language also. And when while using cultural phrases and idioms in reference to cultural elements, it will never happen that in a phrase in English will have exact meaning in Marathi or in Hindi. इंग्लिश में आप कुछ अलग रेफरेंस में उसे यूज करते हैं और मराठी में कुछ अलग रेफरेंस में यूज करते हैं. तो कल्चरल एलिमेंट्स जानने के लिए, या अगर आपके टेक्स्ट में है किसी जापानीज का इंग्लिश में ट्रांसलेट किया हुआ है और आप उसे हिंदी या मराठी में कर रहे हैं, तो जापानीज में जब नमस्कार करते हैं तो वो बाव करते हैं, कमर में झुकते हैं. तो मराठी में उसे करते समय तो कमरेतून वाकला या वो कमर में झुका, ऐसे करने से वो कल्चरल एलिमेंट का लॉस हो जाएगा. दिस इज ट्रांसलेशन लॉस. उसने आपको अभिवादन किया है या नमस्कार किया है, ये आपके मराठी या हिंदी सेंटेंस में से ध्वनित होना चाहिए, ये समझना चाहिए पढ़ने वाले के लिए. सो यू नीड टू हैव द नॉलेज ऑफ कल्चरल एलिमेंट्स ऑल्सो. Next thing is ability to write well and adhere to a given framework. आपके पास एक फ्लेयर होना चाहिए राइटिंग का, जिसे आप अच्छी तरह से अच्छे शब्दों में ट्रांसलेशन कर पाए, अच्छे शब्दों का उपयोग कर पाए या प्रयोग कर पाए. एंड adhere to the given framework. आपको जो दिया है उसे ही आपको ट्रांसलेट करना है. यू कैन नॉट टेक लिबर्टी. आपको अगर किसी ऐसे सब्जेक्ट का ट्रांसलेशन दिया गया है जिसका आपको बहुत नॉलेज है, आपको वो पढ़ते समय कई बार ऐसे लग सकता है कि अरे इसमें ये भी चीज़ होनी चाहिए थी, ये तो इसमें से छूट ही गया है.
तो ट्रांसलेशन में आप उसको अपने मन से ऐड नहीं कर सकते हैं। जो दिया गया है उसे ही ट्रांसलेट करना है, जो मीनिंग उसमें से आपको समझ रहा है वही ट्रांसलेट करना है। ऐसी बात नहीं है, जो मीनिंग राइटर को अपेक्षित है वही मीनिंग आपको ट्रांसलेशन करते समय रखना है। कई बार ऐसे होता है कि कोई कंसेप्ट दी होती है और उसको आपको ट्रांसलेट करना होता है, तो कंसेप्ट को ट्रांसलेट करते समय जो राइटर ने जो कंसेप्ट दी है उसको आपने वैसे के वैसे ट्रांसलेट करना है, अगर आप उस कंसेप्ट से सहमत हो और या न हो तब भी। आपका जो ओपिनियन है वो ट्रांसलेशन में कभी भी रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए। वो मेरा लास्ट पॉइंट है, वो मैं आपको फिर से एक बार बताऊंगी। नेक्स्ट इज स्पेशलिस्ट नॉलेज इन टेक्निकल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और साइंटिफिक एरियाज। तो ट्रांसलेशन के कई प्रकार होते हैं। वो आगे भी हम बताने वाली हूँ। मैं आपको इस पॉइंट के लिए सिर्फ बता दूं कि टेक्निकल ट्रांसलेशन होता है जो अगर इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, कमर्शियल ट्रांसलेशन होता है जो किसी बिजनेस से रिलेटेड होता है, इंडस्ट्रियल ट्रांसलेशन होता है जो किसी इंडस्ट्री से जुड़ा होता है, से प्लास्टिक इंडस्ट्री, से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, और साइंटिफिक एरिया मतलब किसी रिसर्च से जुड़ा होता है। तो अगर आप इन फील्ड्स में एक्सपर्ट हैं, आपको इन फील्ड्स का विशेष नॉलेज है, तभी आप उसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। अदरवाइज उसका ट्रांसलेशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं, जो संज्ञाएं होती हैं, वो आपको पता होती नहीं है। बचपन में आपने सारे सब्जेक्ट सीखे होते हैं, ये बात सही है, पर वो बहुत लिमिटेड होता है। आप फोटोसिंथेसिस को मराठी में कर सकते हैं, हिंदी में कर सकते हैं, लेकिन अगर दूसरा शब्द आ जाए उसकी जगह तो आप नहीं कर पाएंगे मराठी में। जो आपने बचपन में सीखा है 4th 5th स्टैंडर्ड में साइंस का, वो ही आ सकता है। या इंजीनियरिंग के कुछ वर्ड्स होते हैं जो आप 10th तक पढ़ते हैं, जो मशीन को आप अगर मराठी में ट्रांसलेट करते हैं तो आप उसको यंत्र बोलेंगे, या फिर हिंदी में भी यंत्र ही बोलते हैं। लेकिन अगर मैकेनिक ये शब्द आ जाता है तो फिर आपको डिक्शनरी देखने की जरूरत पड़ जाती है। और सिंपल मतलब किसी भी टेक्निकल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, साइंटिफिक मैटर में आपको अगर बार बार डिक्शनरी देखने की जरूरत महसूस हो रही है, दैट मीन्स यू आर नॉट वेल कॉन्वर्सेंट विद दैट फील्ड और विद दैट सब्जेक्ट। तो उसका ट्रांसलेशन आपने करना चाहिए या नहीं, ये आपके विवेक पर निर्भर करता है। आपको ये आसानी से या सहजता से कबूल कर लेना चाहिए कि नहीं, मुझे इस सब्जेक्ट में नॉलेज कम है, तो मैं इसका ट्रांसलेशन नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी। इट विल बी बेनिफिशियल टू यू, क्योंकि आपने अगर गलत ट्रांसलेशन किया है तो अगली बार आपको ट्रांसलेशन का काम कोई देगा ही नहीं। सो यू शुड सेव योरसेल्फ फ्रॉम इट। अटेंशन टू द डिटेल्स, दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट। अटेंशन डिटेल्स की ओर मतलब कैसे वर्णन किया गया है, किस भाषा में किया गया है, और उसी भाषा में मतलब उसी भाषा में अर्थात उसी भाव से आपको ट्रांसलेट करना जरूरी है। नेक्स्ट थिंग इज IT skills, स्पेशली वर्ड प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेशन टूल्स। IT skills मतलब आजकल बहुत से लोग अब कंप्यूटर पे ट्रांसलेशन मतलब कंप्यूटर यूज करके ट्रांसलेशन करते हैं। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ कि मैं कंप्यूटर मतलब IT skills यूज कर रही हूँ मेरे, एंड आई एम टॉकिंग टू यू। आई हैव प्रिपेयर्ड अ प्रेजेंटेशन फॉर यू, दैट इज वन ऑफ द IT skills आई एम यूजिंग हियर। से आप ट्रांसलेशन करते समय वर्ड फाइल में हिंदी या मराठी टाइप कर रहे हैं, दैट इज एन IT स्किल। प्लस you will get many translation tools, computer assisted translation tools on internet। तो उसको कैसे यूज करना है इसका नॉलेज आपको होना चाहिए। कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेशन टूल्स आर नॉट एक्सपर्ट इन ट्रांसलेशन। I am underlining the word assisted. They are just for your assistance. They won't give you perfect translation, और आपके ट्रांसलेशन करने वाले मैटर में जो भाव है वो आपको कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेशन टूल्स देंगे ही, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए ये टूल्स यूज करते समय आपको बहुत अलर्ट रहना चाहिए। नेक्स्ट इज बी नॉन जजमेंटल एंड रिमेन न्यूट्रल। किसी भी अगर आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं कि आपको अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई ट्रांसलेशन आता है, कोई लेटर आता है या कोई प्रेस नोट आता है,
और उसमें अगर लिखा होता है कि ये चीज जो है, जैसे हम हमारे नागपुर का एग्जाम्पल लेंगे कि अजनी वन के जो पेड़ हैं, पौधे हैं, उनको तोड़ना है, तो किसी पार्टी का एक उसके लिए एक विचारधारा होगी, किसी पार्टी की दूसरी विचारधारा होगी। आपके पास जो प्रेस नोट या लेटर आता है, अगर उसमें लिखा है कि नहीं ये झाड़ तोड़ना जरूरी है, और आपको अगर आपका खुद का ओपिनियन है कि नहीं ये पेड़ पौधे तोड़ने की जरूरत नहीं है, तो आप उसमें अपना ओपिनियन डाल नहीं सकते हैं। आपको न्यूट्रल रह के वो जो ट्रांसलेशन है उसको करना है। आपको नॉन जजमेंटल रहना है कि अरे ये पार्टी ऐसा बोल रही है, मतलब ये पार्टी का तो कोई ये नहीं, दैट इज योर पर्सनल ओपिनियन। आपको आपके पर्सनल ओपिनियन से ट्रांसलेशन को दूर रखना बहुत जरूरी है। कई मैटर ऐसे होते हैं जिससे आप सहमत नहीं होते हो, जिससे जो आपको गलत लगते हैं, लेकिन आपका खुद का ओपिनियन ट्रांसलेशन पर प्रभाव नहीं डाल सकता है। दूसरा है a profound understanding of etymological and idiomatic correlations between two languages, including socio-linguistic register when appropriate. जैसे मैंने फ्रेजेस और इडियम्स की बात की थी, और वो इडियोमेटिक कोरिलेट्स में आ जाएगा, और एटिमोलॉजिकल मतलब उस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, वो ओरिजिन क्या है, वो कई बार आपको समझ लेना जरूरी होता है ट्रांसलेशन में, और इसलिए आपको उसका भी प्रोफाउंड मतलब बहुत गहरा ज्ञान होना आवश्यक है। सोशियो लिंग्विस्टिक मतलब कई बार किसी कल्चर में कोई शब्द यूज किए जाते हैं, कोई शब्द यूज नहीं किए जाते हैं, या अलग अर्थ से उसका मीनिंग अलग हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हिंदी में शिक्षा का अर्थ एजुकेशन होता है, और मराठी में शिक्षा का अर्थ पनिशमेंट होता है, तो वो समझ लेना आपको जरूरी है। दैट इज द डिफरेंस, वो जो डिफरेंस है वो आपको समझ लेना जरूरी है। या कुछ लैंग्वेजेस में, जैसे स्पेशली इंग्लिश में स्लैंग लैंग्वेज यूज की जाती है, और स्लैंग लैंग्वेज किस रेफरेंस में, किस सोशल कॉन्टेक्स्ट में या किस लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट में यूज की जा रही है, उसको ध्यान में रखते हुए आपको ट्रांसलेशन करना जरूरी है। लास्ट वन इज a finely tuned sense when to metaphrase and when to paraphrase so as to assure true rather than spurious equivalence between the source and target language text. Means आपको literal translation कब करना है और उसका मीनिंग ट्रांसलेट कब करना है, ये समझना भी जरूरी है। हर बार आप लिटरेट ट्रान्सलेशन नहीं कर सकते हैं। ज्यादातर बार, बहुतांश वेळा तुम्हाला अर्थ ट्रान्सलेट करायचा असतो। आपण जसं ट्रान्सलेशनच्या डेफिनेशन मध्ये बघितलं तसं लिटरल ट्रान्सलेशन हे फार कमी वेळा करण्याची गरज असते किंवा ती आवश्यकता असते। Now moving on, what are the tools of a translator? The first skill and tool you should have with you is good command over the source and target language. You should have word power, your grammar should be accurate, and along with that, you need dictionaries. You need monolingual dictionaries, you need bilingual dictionaries, you need dictionaries of usage and idioms, and electronic dictionaries like online or software app, whatever is provided on internet. Now, why monolingual dictionaries? There are certain terms or certain words which you need to understand first in this language, that is the source language. जैसे इंग्लिश में कोई एक वर्ड दिया है जिसका अर्थ आपको मालूम नहीं है, लाइक से द वर्ड वोकैबुलरी, इसका मीनिंग आपको पता ही नहीं है, तो आप उसको इंग्लिश में मराठी या हिंदी या एनी अदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। तो उसका जो मीनिंग इंग्लिश मोनोलिंगुअल डिक्शनरी में दिया होगा, जो उसका अर्थ एक्सप्लेन किया होगा, उसका प्रोनाउंसिएशन एक्सप्लेन किया होगा, वो जानना बहुत जरूरी है। वो जानने के बाद आप उसको हिंदी या मराठी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। बाइलिंगुअल डिक्शनरीज, इंग्लिश में वोकैबुलरी का मीनिंग आपको समझ आया, लेकिन मराठी में आप उसको क्या बोलेंगे, वो समझने के लिए आपको बाइलिंगुअल डिक्शनरीज चाहिए, जो इंग्लिश टू मराठी, इंग्लिश टू हिंदी, या मराठी टू इंग्लिश, हिंदी टू इंग्लिश, या वाइस वर्सा हो सकती हैं। डिक्शनरीज ऑफ यूसेज एंड इडियम्स या फ्रेजेस, तो उसका भी मीनिंग क्या है और उसके सिमिलर मराठी या हिंदी में कोई फ्रेजेस, इडियम्स या यूसेजेस हैं, तो उसको आपको ढूंढने के लिए डिक्शनरीज की जरूरत पड़ सकती है।
एंड इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरीज जैसे ऑनलाइन डिक्शनरीज हैं जो कई प्रकार की होती हैं, मतलब सिंपल डिक्शनरीज हमारे घर में जैसे होती है मोनोलिंगुअल डिक्शनरीज, वो तो अवेलेबल है ही इलेक्ट्रॉनिकली, बट at the same time in electronic dictionaries you will get some pictures also, you will get another kind of explanation also, you will get many dimensions of the same word also. तो ऐसे अनेक प्रकार के डिक्शनरीज, इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरीज भी अवेलेबल है, सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल है. सॉफ्टवेयर इन द सेंस यू जस्ट टाइप द वर्ड एंड यू विल गेट द मीनिंग, वो भी अवेलेबल है. तो ये सारी डिक्शनरीज आपके पास होनी चाहिए. नेक्स्ट थिंग, द नेक्स्ट टूल इज dictionaries of specialized terminologies. Like in the skills we said that we should be having knowledge of some technical field, scientific area, industrial area, commercial area. तो ट्रांसलेशन करते समय उसमें जो टर्मिनोलॉजीज, जो संज्ञाएं यूज की जाती हैं, उसका डिक्शनरी मीनिंग हमें पता होना चाहिए. कई बार ऐसा होता है कि जो टर्मिनोलॉजीज यूज की गई हैं, से फोटोसिंथेसिस, ये साइंस का एक शब्द है, तो इसका मीनिंग आपको मालूम है, लेकिन उसको मराठी या हिंदी में क्या कहते हैं ये आपको नहीं मालूम है. तो उसके लिए आपको स्पेशलाइज्ड टर्मिनोलॉजीज की डिक्शनरीज आपके पास होना जरूरी है. अब करते करते मुझे पता हो गया है कि इसको प्रकाश संश्लेषण म्हणतात मराठी या हिंदी में, तो मैं तुरंत कर लूंगी. पर आप जब शुरुआत कर रहे हैं तो स्पेशलाइज्ड टर्मिनोलॉजीज के डिक्शनरीज आपके पास होने चाहिए. इट विल बी अ लॉट ऑफ हेल्प. एनसाइक्लोपीडियाज आपके पास होने चाहिए, क्योंकि मैंने जैसे अभी कहा कि आपको एक ही चीज के अलग अलग एंगल्स जानना जरूरी है, और एनसाइक्लोपीडिया में आपको डिटेल्ड वर्णन दिया जाता है किसी भी चीज का, जो कि डिक्शनरीज में नहीं होता है. डिक्शनरीज में कई बार स्पेशलाइज्ड टर्मिनोलॉजीज में आपको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन मिल जाएगा. इन फोटोसिंथेसिस के लिए प्रकाश संश्लेषण, ये टर्मिनोलॉजी मिल जाएगी, लेकिन उसका प्रॉपर अर्थ क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसमें क्या क्या होता है उस प्रोसेस में, ये अगर आपको मालूम नहीं है तो एनसाइक्लोपीडिया की जरूरत है, क्योंकि आपका अगला सेंटेंस शायद उस प्रोसेस से संबंधित हो. सो एनसाइक्लोपीडिया पढ़ना भी जरूरी हो जाता है. देन डिक्शनरीज ऑफ, स्पेलिंग यहाँ पे गलत हो गया है, स्पेलिंग ऑफ डिक्शनरीज ऑफ बायोग्राफीज. बायोग्राफीज का भी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल हम साइंस फील्ड का फिर से एग्जांपल लेते हैं, आई एम बीइंग साइंस स्टूडेंट, मेरे दिमाग में वही आता है कि किसी साइंटिस्ट ने कुछ लिखा है, तो किस ईयर में लिखा है. कई बार आपको ट्रांसलेशन करते समय जो सेंटेंसेस ट्रांसलेशन में दिए हैं किसी के नाम से दिए गए कि आइंस्टाइन ने ये सेंटेंस आइंस्टाइन का है, तो आपको एक बार चेक कर लेना बहुत ज़रूरी है. इंटरनेट में आपको ये सारी चीज़ें मिलेगी, लेकिन यू कैन नॉट रिलाई ऑन इंटरनेट 100%. कई बार इंटरनेट पर गलत सेंटेंसेस, गलत चीज़ें, गलत व्यक्तियों के नाम से भी वायरल होती हैं. तो ट्रांसलेशन करते समय या इन जनरल भी हम जैसे भी हमारे पास कोई पोस्ट आता है हम उसको फॉरवर्ड कर देते हैं, उस समय भी आपको एक बार जांच लेना जरूरी है कि क्या सही में इसी व्यक्ति ने कहा है. और जब आप राइटिंग में, ट्रांसलेशन मतलब राइटिंग ब्लैक एंड व्हाइट में दे रहे हैं, तो आपको इसे एक बार जांच लेना, उसे चेक कर लेना जरूरी है. ये भी ट्रांसलेटर का ही काम है. तो ये सारे रेफरेंस वर्क्स आपके पास होने चाहिए, आप किसी से मतलब कहीं जाकर ढूंढ सकते हैं. रेलेवेंट मटेरियल, जैसे अभी मैंने फिर से कहा कि बायोग्राफीज आपके पास होनी चाहिए, या फिर एनसाइक्लोपीडियाज होने चाहिए. रेलेवेंट मटेरियल आपको कलेक्ट करना क्यों जरूरी है? इफ द ट्रांसलेटर इज नॉट फेमिलियर विद द टॉपिक ही इज ट्रांसलेटिंग, he needs to learn and understand it from relevant source. These sources can be library and internet or any other thing, or you can visit a person who is expert in the field and talk to him and understand the things. अगर आप मैं इंजीनियरिंग का हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर इंजीनियरिंग फील्ड से या टेक्निकल फील्ड से हमें किसी चीज़ की जानकारी ही नहीं है, लेकिन हमें ट्रांसलेशन के लिए वो चीज़ मिल रही है, तो फिर हमें उसके बारे में समझ लेना बहुत ज़रूरी है. तो वो समझ हम कहाँ से लेंगे? रिलेवेंट सोर्स से, या हम किसी टीचर के पास जाएंगे या किसी एक्सपर्ट के पास जाएंगे. और अगर वो हम नहीं हो सकता है तो हम लाइब्रेरी में जाके वो बुक जिसमें ये सारी जानकारी दी है उसे देखेंगे, या इंटरनेट पर भी हम देख सकते हैं. बट इंटरनेट पर जैसे मैंने अभी कहा, एक बार फिर से चेक कर लेना ज़रूरी है कि जो आपने पढ़ा है वो सही है या नहीं. सो दीज आर द टूल्स.
डिक्शनरीज होने चाहिए आपके पास, रेफरेंस मटेरियल होना चाहिए एंड रिलेवेंट मटेरियल के भी होना चाहिए, और ये सब करके फिर आप ट्रांसलेशन ठीक से कर पाते हैं। ट्रांसलेशन करते समय क्या चीजें हमें ध्यान में रखना जरूरी है? द 4 important things are the context, degrees of formality, period of the text and language. अब कॉन्टेक्स्ट मतलब हम किस संदर्भ में बात कर रहे हैं, और उस हिसाब से हमारे वर्ड्स का चॉइस होता है। इंग्लिश में जैसे कि इसमें स्लाइड में आप देख पा रहे हैं कि सपोर्ट ये इंग्लिश वर्ड है, वो किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जा रहा है ये आपको समझना जरूरी है, क्योंकि हिंदी में सपोर्ट के कई सारे अर्थ हैं जो आप देख सकते हैं। सपोर्ट के लिए सहयोग है, समर्थन है, सहारा है, आश्रय है, उपजीविका है, पक्ष है, आसरा है। तो ये वर्ड्स हम किस कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं ये समझकर आपको ट्रांसलेशन करना जरूरी है। मराठीमध्ये पण बघा सपोर्टसाठी आधार, समर्थन, आश्रय, मदत, पैशांची मदत, पाठिंबा, पाठबळ किंवा बाजू घेणे इतके सारे अर्थ सपोर्टचे होतात। मग नेमका कुठला वापरायचा ट्रान्सलेशन करताना हे त्या वाक्याचा संदर्भ काय आहे याच्यावरून ठरेल। आय सपोर्ट हिज ओपिनियन म्हटलं तर हिंदी आणि मराठीमध्ये समर्थन त्याचं ट्रान्सलेशन होईल की त्याच्या मताला माझं समर्थन आहे। ही गेव मी सपोर्ट म्हटलं तर मराठीमध्ये त्यांनी मला आधार दिला किंवा त्यांनी मला पाठिंबा दिला किंवा त्यांनी मला पाठबळ दिलं असं होऊ शकतं। आणि हिंदीमध्ये उसने मुझे सहारा दिया। आता सहारा दिया या मदत केली हे कुठल्या कॉन्टेक्स्ट मध्ये आहे? त्यांनी पैसे दिले का की त्यांनी काम दिलं तुम्हाला? तसं असेल तर मग तुम्हाला उपजीविका किंवा पैशांची मदत हे शब्द मराठीमध्ये ट्रान्सलेट करताना वापरावे लागतील। एकाच शब्दाचे अनेक अर्थ असतात, ते अर्थ आपल्याला कुठल्या संदर्भातलं मॅटर आहे तो विचार करून ते शब्द त्या अर्थाने ट्रान्सलेट करायचे असतात आणि मग ते वाक्य तयार करायचं असतं। अंडरस्टँडिंग अ सेंटेन्स। वी वर ट्रॅव्हलिंग ऑन अ प्लेन, याचं जर ट्रान्सलेशन जसं आता लिटरल ट्रान्सलेशन म्हटलं तर मराठीत करताना आम्ही विमान ऑन आहे तिथे म्हणून आम्ही विमानावर प्रवास करत होतो असं होऊ शकतं, पण ते वाक्य बरोबर आहे का? नाही, त्याचा अर्थ काय आहे तो आपल्याला ट्रान्सलेट करायचा आहे, म्हणून आम्ही विमानाने प्रवास करत होतो असं होतं। हिंदीमध्ये करताना वी वर ट्रॅव्हलिंग ऑन प्लेनचं हिंदीमध्ये लिटरल ट्रान्सलेशन करायचं म्हटलं तर ते कसं होईल? हम हवाई जहाज पर यात्रा कर रहे थे, तो हवाई जहाज पर यात्रा नहीं करते हैं, हम हवाई जहाज से यात्रा करते हैं। तर इथे प्रॉपर सेंटेंस कंपोजिशन कैसे होगा, ग्रामर कैसे होगा, ये सोच के हम ट्रांसलेशन करते हैं। दूसरा एक सेंटेंस लिखा हुआ है, शी वॉज वेयरिंग अ ब्यूटिफुल कुर्ता विच वॉज डार्क रेड इन कलर। अब ये इंग्लिश में सही है, मराठी मध्ये इसका सरळ ट्रान्सलेशन करायचं म्हटलं तर तिने सुंदर कुर्ता घातला होता जो गडद लाल रंगाचा होता असं वाक्य होऊ शकतं, पण मराठीमध्ये वाक्याच्या शेवटी आपण जो असं साधारणपणे वापरत नाही, वाक्य रचना चुकीची आहे ती। पण आपण आजकाल बोलताना असं म्हणतो जे असं होतं, जे तसं होतं असं नाही आहे, आपण त्याचा अर्थ ट्रान्सलेट करतोय म्हणून त्याचं ट्रान्सलेशन होईल तिने गडद लाल रंगाचा सुंदर कुर्ता घातला होता, हे वाक्य पूर्णपणे बरोबर आहे। हिंदीत मात्र उसने बहुत सुंदर कुर्ता पहना था जिसका रंग गहरा लाल था। हिंदीत अशी वाक्य रचना नेहमीच केली जाते। हिंदी में ऐसी वाक्य रचना सदैव की जाती है, हमेशा की जाती है, इसलिए हिंदी में ये गलत नहीं है। पर मराठी में जैसे मैंने लिखा है सेंटेंस, हमने उसका सेंटेंस का कंपोजिशन वाक्य रचना अलग से की है, वो ध्यान में रखकर आपको ट्रांसलेशन करना जरूरी है। थर्ड सेंटेंस जो कि मैंने टीवी एडवर्टाइजमेंट से लिया है, और टीवी एडवर्टाइजमेंट में आपको बहुत गलत ट्रांसलेशंस मिलेंगे। आज से आप अगर टीवी एडवर्टाइजमेंट देखना शुरू करेंगे और ठीक से देखेंगे, जो हिंदी में आप एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं वही एडवर्टाइजमेंट आप अगर मराठी में देखेंगे तो आपको कैसे गलत ट्रांसलेशन होता है ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। इंग्लिश में जो एडवर्टाइजमेंट आती है या सेंटेंस आता है सेंसोडाइन टूथपेस्ट का, रैपिड रिलीफ विद सेंसोडाइन। हिंदी में आता है
रैपिड रिलीफ सेंसोडाइन के साथ। तो क्या सेंसोडाइन के साथ रैपिड रिलीफ मिलता है या सेंसोडाइन के कारण रैपिड रिलीफ मिलता है, ये सोचने वाली बात है. मराठीमध्ये तुम्ही जाहिरात पाहिली सेन्सोडाईनची तर ते म्हणतील रॅपिड रिलीफ सेन्सोडाईन बरोबर. सेन्सोडाईन बरोबर म्हणजे काय, बरोबर असणं म्हणजे काय आहे, बरोबर असणं म्हणजे टू बी विथ, इजंट इट. मग सेन्सोडाईन बरोबर म्हणजे सेन्सोडाईन पेस्ट आपण हातात धरली, ती आपल्या बरोबर आहे, ती आपल्या सोबत आहे, म्हणून सेन्सोडाईनने आपल्याला रिलीफ मिळेल का, नाही मिळणार. तर त्याचं ट्रान्सलेशन कसं व्हायला पाहिजे, रॅपिड रिलीफ सेन्सोडाईन मुळे किंवा सेन्सोडाईन वापरल्याने. रैपिड रिलीफ सेंसोडाइन बरोबर हे अतिशय चूक मराठी है. रैपिड रिलीफ सेंसोडाइन के साथ ये भी गलत हिंदी है, इसे आपको ठीक से ट्रांसलेट करना चाहिए. अब देखिए ये सारी दुनिया में एडवर्टाइजमेंट्स आ रही हैं, टीवी पर आ रही है, सारी दुनिया देख रही है. ये ऐसे ट्रांसलेशन क्यों किया जाता है ये मुझे आज तक समझ में नहीं आई ये बात. पर जब आप ट्रांसलेशन करेंगे, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट्स का ट्रांसलेशन भी बहुत बड़ा फील्ड है, बहुत काम है, तो अगर आपको ये मौका मिलता है तो आप हमेशा ये ध्यान रखें कि क्या आप सेंटेंस का मीनिंग कन्वे कर रहे हैं या लिटरल. ये लिटरल ट्रान्सलेशन हो गया, रॅपिड रिलीफ सेन्सोडाइन बरोबर, हे लिटरल ट्रान्सलेशन झालं, पण वाक्य चूक आहे, त्याच्यामुळे तुम्हाला अर्थ कळतोय का. तुम्हाला इंग्लिश वाक्य माहिती आहे म्हणून तुम्हाला मराठी वाक्याचा अर्थ कळतो आहे. तुम्हाला फक्त मराठी वाक्य सांगितलं रॅपिड रिलीफ सेन्सोडाइन बरोबर, तर तुम्हाला वाटेल की पुढे काहीतरी अजून 2-3 शब्द आहेत तेव्हा हे वाक्य पूर्ण होईल. असं ट्रान्सलेशन करणं चुकीचं आहे आणि ट्रान्सलेशन करताना या गोष्टी लक्षात ठेवणं आवश्यक आहे. नेक्स्ट, एवरी लैंग्वेज हैज इट्स ओन स्ट्रक्चर, जिसके बारे में हमने अभी बात की, एंड ग्रामर, उसे हमें फॉलो करना चाहिए. लिटरल ट्रांसलेशन करना जरूरी नहीं है. अब हम आएंगे, हम ट्रांसलेशन ऐप या इंटरनेट पर, जैसे गूगल ट्रांसलेट, ये एक इंटरनेट पे अवेलेबल है, उसको यूज करते समय वो आपको सिंपल सेंटेंसेस का सही ट्रांसलेशन देगा. माय नेम इज वृशाली बोलने से आपको वो मराठी में माझं नाव वृशाली है, हिंदी में मेरा नाम वृशाली है, ये सही ट्रांसलेशन देगा. लेकिन कई सारे सेंटेंसेस ऐसे हैं जिसका ट्रांसलेशन गूगल ट्रांसलेट भी ठीक से नहीं दे पाता है, जिसका मैंने अभी एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, फॉलो द लीड. इस लीड का मीनिंग है कि अगर आप किसी क्राइम के बारे में पढ़ रहे हैं या लिख रहे हैं तो हम बोलते हैं कि ही गॉट सम लीड, और उसके हिसाब से आगे का इन्वेस्टिगेशन होगा. इस रेफरेंस में फॉलो द लीड ये सेंटेंस लिखा है. अगर आप इस सेंटेंस को गूगल ट्रांसलेट में डालेंगे या वहां पे टाइप करेंगे तो हिंदी में आएगा नेतृत्व का पालन करें, क्योंकि लीड का अर्थ नेतृत्व भी होता है. किंतु हम जब किसी क्राइम के बारे में ट्रांसलेट कर रहे हैं तो लीड का मतलब होता है कि हमें कुछ जानकारी मिली है जिससे हम इन्वेस्टिगेशन आगे ले जा सकते हैं. तो यहाँ पे नेतृत्व का पालन करें, ये ट्रांसलेशन गलत होगा. मराठी में इसका ट्रांसलेशन आता है आघाडी अनुसरण करा. लीड मतलब आगे आगे पुढे, पुढचं पण होतं ना, समोरचं पण होतं ना, म्हणून त्याचं आघाडी असं ट्रान्सलेशन येतं. त्याच्यामुळे जे कॉन्टेक्स्ट दिला आहे, जे अंडरस्टँडिंग कॉन्टेक्स्ट म्हणतो आपण, ते पण बघायला पाहिजे. ऍट द सेम टाइम ज्या शब्दाचा जसा अर्थ आपल्याला हवा आहे तसा आपल्याला ट्रान्सलेशन ऍप मध्ये मिळतो आहे का याकडे पण आपण लक्ष दिलं पाहिजे. तिथे दिलं आहे, कोणत्याही ट्रान्सलेशन ऍप मध्ये तुम्हाला ट्रान्सलेशन करून मिळतं आहे इंग्लिशचं हिंदीमध्ये किंवा हिंदीचं इंग्लिशमध्ये मराठीमध्ये, म्हणजे ते बरोबर आहे असं गृहीत धरणं पूर्णपणे चूक आहे. तुम्ही ते ट्रान्सलेशन ऍप वापरा. तुम्हाला त्यातनं तुम्ही जर फक्त वर्ड्स टाकले तर तुम्हाला खूप सारे मिनिंग्स येतील वेगवेगळ्या. म्हणजे जसं मी सपोर्टचं सांगितलं तुम्हाला की तुम्ही सपोर्ट शब्द गुगल ट्रान्सलेट मध्ये टाकला तर तुम्हाला हे सगळे अर्थ तिथे मिळतील, आणि त्यातला नेमका कुठल्या अर्थाचा शब्द वापरायचा आहे हे मात्र तुम्हालाच ठरवायचं आहे. याच म्हणूनच आजपर्यंत कुठलीही कंपनी ट्रान्सलेटरला का बरं अजून हायर करते, कारण गुगल ट्रान्सलेट किंवा कोणतंही ट्रान्सलेशन ऍप पूर्णपणे ऍक्युरेट करेक्ट ट्रान्सलेशन देऊ शकत नाही, नाहीतर त्यांचे पैसे वाचले असते ना कंपन्यांचे. तुम्ही डॉक्युमेंट गुगल ट्रान्सलेट मध्ये तर फुल डॉक्युमेंट ट्रान्सलेट करण्याची पण सोय आहे.
मग कंपन्यांनी काय केलं असतं, त्यांनी किंवा कुठल्या इन्स्टिट्यूटनी काय केलं असतं, गुगल ट्रान्सलेटमध्ये डॉक्युमेंट टाकून दिलं की ते इकडे ट्रान्सलेट करून आलं की तेच त्यांनी प्रिंट करून घेतलं असतं. पण त्याच्यात अजिबात अॅक्युरसी नसते, त्याच्यात अनेक चुका असतात आणि म्हणूनच ट्रान्सलेटरला हायर करतात. आणि म्हणूनच ट्रान्सलेटरनी, अनुवादकांनी, भाषांतरकारांनी आपली जबाबदारी ओळखून काम करणं खूप गरजेचं आहे. आपणही गुगल ट्रान्सलेट किंवा इतर ट्रान्सलेशन ऍप्स किंवा इंटरनेट वापरू शकतो, पण त्यातलं काय घ्यायचं आणि काय नाही घ्यायचं हे ट्रान्सलेटरनी ठरवायचं असतं. म्हणून ट्रान्सलेटरला त्या त्या फील्डचं नॉलेज असणं फार गरजेचं आहे. व्हॉट आर द टाइप्स ऑफ ट्रान्सलेशन? एक जनरल ट्रान्सलेशन, जसं मी तुमच्याशी बोलते आहे आणि ते समजा लिहिलं तर त्याचं हिंदी किंवा इंग्लिशमध्ये ट्रान्सलेशन. टेक्निकल ट्रान्सलेशन, which is specially related to engineering or the field, engineering field. Scientific translation is mostly related to research area in science. Medical translation is another type of translation and it is related to medical field. Financial translation. Financial translation is related to transactions, banks, next is economic translation, they are correlated. Then legal translation, judicial translation and judicial translation. It is related to law. If you are good at it, you can go in this field also. If you are related to law somehow or you have studied law, then you can do legal translation or judicial translation or judicial translation. जुडिशियल स्पेशली जैसे जज जो भी डिसीजन देते हैं उसका ट्रांसलेशन होता है, दैट इज जुडिशियल ट्रांसलेशन. लीगल एंड जुडिशियल में जैसे जनरल पब्लिक के लिए जो लॉज होते हैं या फिर कोई क्लॉजेस होते हैं, कोई रूल्स होते हैं, उसका ट्रांसलेशन होता है. Then is patent translation. Nowadays, patent is very common word because we are using it very oftenly for vaccines. We are saying that vaccines should be made पेटेंट फ्री, राइट. सो पेटेंट का जो ट्रांसलेशन है, पेटेंट ट्रांसलेशन भी होता है और वो भी बहुत जरूरी होता है क्योंकि उससे एग्जैक्टली उस चीज में क्या है, किस लिए पेटेंट दिया गया है, ये सारी चीजें उसमें लिखी होती हैं, इसलिए पेटेंट ट्रांसलेशन जरूरी है. देन लिटरेरी ट्रांसलेशन, वो जैसे हमने अभी बात की थी कि हर बार लिटरेरी ट्रांसलेशन वाली जो बात है वो हमारे साहित्य से जुड़ी है. इसलिए साहित्य, मराठी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो या किसी भी भाषा का हो, लिटरेरी ट्रांसलेशन करते समय हमें उस कल्चर का ज्ञान होना बहुत जरूरी है और तभी लिटरेरी ट्रांसलेशन ठीक से हो पाता है. और इसके लिए जैसे मैंने कहा, हर एक ट्रांसलेशन के लिए हमें वर्ड पावर और ग्रामर की जरूरत है. लिटरेरी ट्रांसलेशन के लिए बहुत ज्यादा है क्योंकि हर एक शब्द के बहुत छोटे छोटे बारीक मायने होते हैं जिन्हें समझ लेना बहुत जरूरी है. देन कम्स कमर्शियल ट्रांसलेशन, जो बिजनेस से रिलेटेड होता है. एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसलेशन, जैसे कि हमारे गवर्नमेंट के जीआरस आते हैं या फिर आपके कॉलेज से नोटिस आती हैं या और अन्य प्रकार के जो एडमिनिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसका ट्रांसलेशन होता है. और इस एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसलेशन की अपनी एक भाषा होती है, अपनी एक शब्द रचना होती है, वो जानना बहुत जरूरी है. वो समझकर आप एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसलेशन कर सकते हैं. देन आर मार्केटिंग ट्रांसलेशन, जैसे आपके फोन पे बहुत सारे एसएमएस आते हैं, व्हाट्सएप पर भी मैसेजेस आते हैं मार्केटिंग के, वो कई बार इंग्लिश में होते हैं. तो आजकल कंपनीज का ऐसा चल रहा है, जैसे आपने ओला या उबर में भी देखा होगा, यू गेट अ ऑप्शन इफ यू वांट टू हैव इट इन हिंदी और मराठी और इंग्लिश. तो ये मार्केटिंग ट्रांसलेशन हो गया कि जैसे कि ओला या उबर में आप देखेंगे कि हिंदी में भी अवेलेबल है और मराठी में भी अवेलेबल है. कैब बुक करा, कैबला बोलवा, ऐसे कुछ कुछ ट्रांसलेशन है. तो दैट इज पार्ट ऑफ मार्केटिंग ट्रांसलेशन. देन सर्टिफाइड ट्रांसलेशन, दीज आर वेरी स्पेशलाइज्ड ट्रांसलेशन एंड इसके सर्टिफाइड मीन्स यू आर अ सर्टिफाइड ट्रांसलेटर फ्रॉम अ गवर्नमेंट और एनी अदर फॉरेन कंट्री और यूनेस्को और यूएनओ, और उनके सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके ट्रांसलेशन आप करते हैं. दैट इज सर्टिफाइड ट्रांसलेशन. That is, you get a certificate from government that yes, this person is expert in this field and he will do translations for our country, for our state. Okay. There is game localization. Nowadays there is
बहुत हुबला हूब ऑफ दैट गेम, वीडियो गेम्स। तो वीडियो गेम्स में जैसे इंग्लिश में इंस्ट्रक्शंस आते हैं या इंग्लिश में कमेंट्री चलते रहती है, दैट यू हैव टू ट्रांसलेट इन हिंदी और मराठी। इंस्ट्रक्शंस हिंदी या मराठी में, जैसे आई एम टॉकिंग अबाउट हिंदी, मराठी एंड इंग्लिश ओनली, बट दिस इज एप्लीकेबल टू एवरी लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। देन वॉइस ओवर एंड डबिंग प्रोजेक्ट्स। कई बार ऐसा होता है कि यू गेट इंग्लिश टेक्स्ट, यू गेट टू हियर इंग्लिश टेक्स्ट, और या फिर इंग्लिश मैटर आपके हाथ में आता है पढ़ने के लिए, एंड यू हैव टू इमीडिएटली डू इट इन हिंदी और मराठी और एनी अदर लैंग्वेज। सो यू शुड बी गुड in both the languages, the language you are reading and the language in which you will be doing voiceover or dubbing the projects. This is specially for serials, movies and advertisements. Then subtitles, movie subtitles, serial subtitles, उसका ट्रांसलेशन भी आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इट पेज यू लाइक एनीथिंग। बट फॉर दैट आपको लिटरेचर की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। लाइक वाइल ट्रांसलेटिंग द सॉन्ग्स, आप देखिए कोई भी हिंदी फिल्म आप देखिए, उसके सॉन्ग्स का ट्रांसलेशन देखिए, उसके सॉन्ग्स के जब सबटाइटल्स आते हैं तो सॉन्ग का मीनिंग एक होता है और सबटाइटल्स आप पढ़ेंगे तो आप हंस देंगे। इवन इफ द सैड सॉन्ग इज गोइंग ऑन, आपको हंसी आ जाएगी वो सबटाइटल्स देख के, क्योंकि उसका ट्रांसलेशन बहुत मजेदार तरीके से किया होता है। आपको सॉन्ग का ट्रांसलेशन करते समय उसके भाव पकड़ना जरूरी है। एंड आप सबटाइटल्स क्यों बनाते हैं? क्योंकि हिंदी सॉन्ग्स या मराठी सॉन्ग्स का मीनिंग इंग्लिश मूवी देखने वाले को या बंगाली भाषिक जो है उसे हिंदी या मराठी नहीं समझ में आएगा, इसलिए आप सबटाइटल्स देते हैं। तो आपको सॉन्ग का लिटरल ट्रांसलेशन नहीं करना है, आपको सॉन्ग के मीनिंग का ट्रांसलेशन करना है, और ये आपको ध्यान में रखना है। और जैसे कि हम बोलते हैं डायलॉग्स, हम जहां से खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू होती है। ये जो डायलॉग है इसको आप इंग्लिश में इसका लिटरल ट्रांसलेशन नहीं कर सकते हैं, आपको इसका मीनिंग आपके व्यूअर को समझना चाहिए, इस तरह से इसका ट्रांसलेशन करना जरूरी है। अगर आप उसको सीधा सीधा ट्रांसलेट कर देंगे तो उसका हो जाएगा द लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम देयर आई स्टैंड, ये तो लिटरल ट्रांसलेशन हो गया उस डायलॉग का। ऐसा करना ये गलत बात है। नेक्स्ट इज वेबसाइट ट्रांसलेशन। आजकल कई सारी वेबसाइट्स इंग्लिश में हैं और कई सारी वेबसाइट्स या जिनकी वेबसाइट्स हैं वो लोग, वो कंपनीज, वो इंस्टीट्यूशंस, वो इंडस्ट्रीज हिंदी और मराठी में भी लोगों के सामने आना चाहते हैं। तो उनका जो मैटर होता है वो कई बार तो वेबसाइट के साथ, मतलब जैसे आप बैंक का देख लीजिए, किसी बैंक के साइट पर आप जाएंगे, स्पेशली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स का आप अगर देखेंगे, जैसे मुथूट फाइनेंस है, बजाज फिनसर्व है, इनके साइट्स पर आप जाएंगे या इनके एप्स पर आप जाएंगे तो आपको इंग्लिश, हिंदी, मराठी तीनों ही ऑप्शंस मिलते हैं। और फिर आपको जैसे आपने एंटर योर नेम, तो इसका ट्रांसलेशन जैसे आपके स्क्रीन पर आता है एंटर योर नेम, आप इंग्लिश जानते हैं इसलिए आप आपका नाम एंटर कर देंगे। पर जो इंग्लिश या इंग्लिश नहीं जानते हैं उनके लिए मराठी और हिंदी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तब तक कि वो ऐप नहीं यूज़ पाएंगे। और स्पेशली रूरल एरिया में ये चीज़ें बहुत आजकल काम कर रही हैं। तो आप तुमचं नाव इथे एंटर करा, आपका नाम यहाँ एंटर करें, या आपका नाम यहाँ लिखे, या आपका नाम यहाँ डाले, ये जो ट्रांसलेशन है गो बैक या मागे परत, मागे फिरा किंवा पुन्हा सुरुवात, गो टू स्टार्ट, सुरुवातीला जा, ऐसे जो चीजें हैं एप्स की वो वेबसाइट ट्रांसलेशन में आती है। एंड लास्टली इज एडवर्टाइजमेंट ट्रांसलेशन, जिसकी बात हमने अभी की सेंसोडाइन के साथ। कई मतलब जितने भी एडवर्टाइजमेंट्स हैं वो आप हिंदी में भी देखेंगे, इंग्लिश में भी देखेंगे एंड मराठी में भी देखेंगे। तो वो तो बड़ी मतलब बहुत बड़ा फील्ड है। आप अगर आपको महारत हासिल है शब्दों से खेलने में, देखिए एडवर्टाइजमेंट ट्रांसलेशन में केवल सेंटेंसेस नहीं होते हैं, जिंगल्स भी होते हैं। तो आपको जिंगल्स ट्रांसलेट करना भी आना चाहिए, देन यू कैन बी एन एक्सपर्ट इन एडवर्टाइजमेंट ट्रांसलेशन। एक दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि एडवर्टाइजमेंट्स में कई बार जैसे वॉशिंग मशीन का एडवर्टाइजमेंट है और आप उसके टेक्निकल राइटिंग देख रहे हैं या आप उसका ब्रोशर ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो उसमें कई जगह वो वर्ड वैसे के वैसे यूज करना जरूरी होता है।
जैसे कि वॉशिंग मशीन का हम देखें तो उसमें है कि होज पाइप, तो उसके लिए आप हिंदी या मराठी वर्ड नहीं ढूंढेंगे, क्योंकि हर जगह इंग्लिश, हिंदी और मराठी में होज पाइप का मीनिंग क्या है या वो क्या चीज है ये सबको मालूम होता है, क्योंकि आपको जब आप वॉशिंग मशीन खरीदने जाते हैं तो वहाँ का जो दुकानदार होता है या वहाँ का जो सेल्स पर्सन होता है वो आपके घर में आके या दुकान में आपको सारी चीजें समझाता है और आपको वो वही वर्ड्स यूज करता है। इसलिए आपके साथ अगर जो ब्रोशर है किसी एडवर्टाइजमेंट का या उस वॉशिंग मशीन का या मिक्सर का, तो आपको कई वर्ड्स वैसे के वैसे यूज करने हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, there is another kind of translation which is called back translation. What is it? It is a translation of a translated text back into the language or the original language made without reference to the original text. बैक ट्रांसलेशन वो चीज है जैसे आपने कोई इंग्लिश टेक्स्ट है उसे मराठी में ट्रांसलेट किया है, लेकिन वो ट्रांसलेशन सही है या नहीं ये किसी से कंपनी उसकी जांच करवा लेती है, तो वो मेरे पास भेजते हैं पूरा मराठी टेक्स्ट जो आपने ट्रांसलेट किया है और कहते हैं कि आप इसे इंग्लिश में कर दीजिए। लेकिन जो इंग्लिश टेक्स्ट उन्होंने ट्रांसलेशन के लिए आपको भेजा है वो इंग्लिश टेक्स्ट मेरे पास नहीं आता है। आपने जो मराठी या हिंदी में ट्रांसलेट किया है वो मेरे पास आता है, वो पढ़कर मैं उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करती हूँ, वो मैं कंपनी को भेजती हूँ और फिर कंपनी उसे अपने ओरिजिनल इंग्लिश टेक्स्ट से मैच करके देखती है कि मैंने क्या लिखा है। अगर मैंने जो लिखा है उसका अर्थ, उसका भाव वही है जो उनके ओरिजिनल टेक्स्ट में है, तो आपने जो उसका मराठी में या हिंदी में ट्रांसलेशन किया है वो सही है, ऐसे कंपनी मानती है। So back translation is a comparison type of thing. इससे आपको या कंपनी को पता चलता है, जैसे आपने भी कभी ट्रांसलेशन किया है तो आप मन ही मन में बैक ट्रांसलेशन भी करके देखिए कि हाँ इंग्लिश में मैंने ऐसे लिखा है, हिंदी में इसका सही है या नहीं, तो आपको समझ में आएगा कि आपके ट्रांसलेशन एक्यूरेट है या नहीं। ओरिजिनल ट्रांसलेशन की एक्यूरेसी चेक करने के लिए ही बैक ट्रांसलेशन किया जाता है। लाइक आई हैव रिटन हियर कि मैथमेटिकल ऑपरेशन सॉल्व करते समय आप ऊपर से नीचे सॉल्व करते हैं और फिर एक बार फिर से नीचे से ऊपर भी देखते हैं, सो दैट योर आपने जो स्टेप्स किए हैं मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करने में या कॉन्सेप्ट सॉल्व करने में या थ्योरम सॉल्व करने में वो सही है या नहीं। अगर आपका आंसर जो ओरिजिनल थ्योरम का सेंटेंस है या ओरिजिनल फॉर्मूला है वही आता है, देन योर स्टेप्स आर राइट। इफ नॉट देन यू हैव गॉन रॉन्ग समवेयर, फिर आप उसको चेक कर सकते हैं। सेम with translation but with language and words, that is also called as reverse translation. ये सारी चीजें जो बैक ट्रांसलेशन है, रिवर्स ट्रांसलेशन है या कंपैरिजन ऑफ ट्रांसलेशन है, ये सारी चीजें ज्यादातर मेडिकल फील्ड में या फार्मा इंडस्ट्रीज में होती हैं, इसलिए कि फार्मा मतलब दवाइयाँ, मेडिकल मतलब डॉक्टर्स जो डिसीजंस लेते हैं वो सही है या नहीं, या उसमें से सही लिखा गया है या नहीं, सही कन्वे हो रहा है कि नहीं, क्योंकि किसी के जान की बात होती है, इसलिए उसमें ज्यादातर मेडिकल या फार्मास्यूटिकल फील्ड में बैक ट्रांसलेशन जरूरी माना जाता है। ये मैंने लिखा भी है नीचे कि when translations are produced of material used in medical clinical trials such as informed consent forms, a back translation is often required by ethics committee or institutional view board. अब ये इन्फॉर्म कंसेंट जो जैसे मैं थोड़ा सा आपको एक 2 मिनट में बता दूं कि हमारे लिए जो दवाइयाँ आती है फार्मास्यूटिकल कंपनीज बनती हैं, तैयार करती हैं, जैसे कि आपने अभी वैक्सीन के बारे में सुना होगा कि ह्यूमन ट्रायल्स किए जाते हैं। और ह्यूमन ट्रायल्स का मतलब ये नहीं होता है कि आपको बुलाया गया और आपको बताया गया कि आपको ये वैक्सीन दिया जा रहा है और फिर इसका टेस्ट करेंगे, आपके में क्या क्या चेंजेस आते हैं, आपका ब्लड टेस्ट करेंगे, ये करेंगे और फिर दवाई बन जाती है, ऐसी बात नहीं होती है। उसका एक प्रोसीजर होता है। अगर आप उस प्रोसीजर में ह्यूमन ट्रायल में आप वॉलंटियर हैं तो आपको बाकायदा सारी चीजें समझा दी जाती हैं, उसका एक फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म। आपको पूरा बता दिया जाता है कि प्रोसेस क्या होगी, आपको क्या क्या दवाई दी जा रही है, कैसे दी जाएगी, कब दी जाएगी, आपको खाना खाना है या नहीं खाना है, और आपको दवाई देने के बाद क्या क्या सिम्टम्स आप में आपको बुखार आ सकता है, आपके हाथ में दर्द हो सकता है, आपको चक्कर आ सकता है, ये सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड होती है और
जो वॉलंटियर्स होते हैं वो इंग्लिश, हिंदी, मराठी जो भी भाषा जानते हो उसमें वो जो डॉक्यूमेंट है वो ट्रांसलेट किया जाता है। अब ये ट्रांसलेशन इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि किसी की जान की जोखिम जोखिम है, और अगर मुझे पता चला कि अरे ये दवाई लेने के बाद मुझे बुखार आने वाला है या फिर मुझे तकलीफ होने वाली है, तो मेरी इच्छा है कि मैं इसमें इस ट्रायल में भाग लूं या ना लूं। इसलिए प्रॉपर अर्थ, मीनिंग कन्वे होना जरूरी है, और वो ठीक से कन्वे हो रहा है या नहीं ये बैक ट्रांसलेशन से समझ में आता है। इसलिए बैक ट्रांसलेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। व्हाट आर द जनरल बिजनेस स्किल्स फॉर ट्रांसलेशन? आपको अगर ट्रांसलेशन के प्रोफेशन में आना ही है तो आपको क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए? मतलब ये सारे स्किल्स, ये सारे टूल्स तो आपके होने चाहिए, प्लस अगर आप बिजनेस में आना चाहते हैं तो इट इज गोइंग टू बी अ बिजनेस स्किल ऑल्सो। सो यू शुड हैव एन एबिलिटी टू अडियर टू द डेडलाइंस। आपके हाथ में जब काम आता है ट्रांसलेशन का, तो सबसे पहला काम है आपका कि इसकी डेडलाइन क्या है, आपको ये काम कब करके भेजना है। जैसे एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं या प्रेस नोट्स होते हैं वो तो तुरंत करके चाहिए होते हैं, उसकी कोई डेडलाइन नहीं होती है। आपके पास काम आया कि आपको तुरंत कर देना, यू विल गेट हाफ एन आवर फॉर इट, और उसके आपको ट्रांसलेशन करके भेज देना है। तो आपके पास उतना समय है क्या? आपके पास उतना वर्ड्स एंड सेंटेंस एंड लैंग्वेज फ्लुएंसी है क्या? ये सोचकर ही आपको काम लेना है, क्योंकि इस फील्ड में समय बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप समय पे काम नहीं दे पाएंगे तो अगली बार आपको काम नहीं मिलेगा। और अगर आप ठीक से बताते हैं कि नहीं मैं आपको 1 घंटे में दे सकता हूँ, उसके पहले नहीं दे सकता, आप काम को हाथ से जाने दीजिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। आपका नाम खराब हो इससे अच्छा है कि आप काम ही ना करें, राइट? सो डेडलाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा, आप अगर बोलते हैं कि नहीं कल सुबह मैं 10 बजे काम भेज रही हूँ या भेज रहा हूँ, तो आपको 10 बजे काम भेजना जरूरी है, क्योंकि जब तक कि आप ये काम भेजेंगे नहीं अगले बंदे का काम शुरू नहीं होगा, वो अगला काम अपना काम पूरा नहीं कर पाएगा। सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप द डेडलाइन। जैसे आपको पेपर में कोई एडवर्टाइजमेंट्स देनी है तो नाउ डेज पेपर से न्यूज़पेपर से दैट आप अगर 4 बजे तक हमें काम भेज रहे हैं तो आपका नेक्स्ट डे न्यूज आ जाएगा। और नेक्स्ट डे न्यूज आना इंपॉर्टेंट है, तो आपको किसी भी हालत में आपको वो काम चाहे सुबह 9 बजे मिले या आपको 3:30 बजे मिले दोपहर के, आपको दोपहर के 4 बजे तक वो काम न्यूज़पेपर के ऑफिस में भेजना जरूरी है। एंड दैट स्पीक्स अबाउट योर प्रोफेशनलिज्म। एंड इफ यू आर प्रोफेशनल देन ओनली यू आर गोइंग टू गेट वर्क। Keep files, personal details and any other sensitive matter confidential and safe. This is very important. आप काम के बारे में चर्चा कर सकते हैं कि किस प्रकार का काम कर रहे हैं। ये आपको अगर आपके दोस्त या आपके टीचर्स या और कोई रिलेटिव्स पूछता है कि आजकल क्या चल रहा है, तो आप बोल सकते हैं कि मैं एडवर्टाइजमेंट का ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, टेक्निकल मैटर है ये वो। बट इट्स योर प्राइम ड्यूटी टू कीप ऑल द थिंग्स कॉन्फिडेंशियल एंड सेफ विथ यू। Many a times if you are doing translation from medical field, pharmaceutical field or technical field or any important business, then आपको एग्रीमेंट साइन करना होता है कि आप कम से कम 3 साल तक 5 साल तक ये सारा सेफ एंड कॉन्फिडेंशियल रखेंगे। आप नहीं करते हैं तो यू हैव टू फेस लीगल एक्शन। सो किसी भी काम कोई भी काम हो, आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करें या ना करें, काम कॉन्फिडेंशियल और सेफ रखना जरूरी है और उसके प्रति उतना सेंसिटिव होना भी जरूरी है। थर्ड बिजनेस स्किल इज यू नीड टू कम्युनिकेट वेल विथ योर क्लाइंट्स। यू नीड टू बी सॉफ्ट स्पोकन, यू नीड टू बी पोलाइट, यू नीड टू बी गुड। आप मतलब क्लाइंट कैसे भी बात करे, आपको पोलाइटली ही बात करनी है। दैट स्पीक्स अबाउट योर पर्सनैलिटी एंड योर एबिलिटी, सो यू नीड टू keep it in mind. And to the end, I'll talk about a bit in brief about translation. अगर आप सोचते हैं कि translation is just translating words or sentence into another language, no, it has got a vast base. And so we need to change our thought process, which makes us to see translation merely as converting a word from one language to another language. It is not only words, or it is not mere words. You are translating a whole culture, whole context into another language, and that is a very big responsibility. Translation demands high level of precision.
It is to the extent that if the translator does not try to achieve the desired results, it is betrayal of the author. This happens in case of literary translation. अगर आप ठीक से नहीं कर पाते हैं ट्रांसलेशन, तो वो ऑथर के साथ विश्वासघात होगा, बिट्रल ऑफ द ऑथर, क्योंकि जो ऑथर को लिखना है वो आप कर ही नहीं पा रहे हैं, तो आपके ट्रांसलेशन का कोई मीनिंग ही नहीं है. ट्रांसलेशन इज लाइक एक्टिंग. जैसे कोई एक कैरेक्टर दिया जाता है, हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि आमिर खान इज परफेक्शनिस्ट, मनोज वाजपेयी बहुत अच्छा काम करते हैं. व्हाई? बिकॉज दे पोर्ट्रे द कैरेक्टर अप टू द मार्क. जैसे जैसे आपकी सोच में जैसे जैसे आते जाता है, वैसे वैसे ये एक्टर्स आपको एक्टिंग करके दिखाते हैं. ट्रांसलेशन, बिकॉज दे एंटर द स्किन ऑफ द कैरेक्टर. वो हम लोग बोलते हैं ना, कैरेक्टर में पूरा घुस गया था. ट्रांसलेटर हैज टू बी लाइक दैट. ट्रांसलेटर हैज टू एंटर द ऑथर स्किन, तभी ट्रांसलेशन ठीक से होता है. As actors enter into the character, a translator has to enter into the skin of original writer, and he has to be faithful to the original content to the possible extent. मेरे दिमाग में कुछ आ रहा है कि हाँ इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन ऐसे हो जाएगा, तो मैंने लिख दिया. ऐसे करना ठीक नहीं है. I have to be faithful with the original content. जितनी गहराई से और जितना वाइड स्प्रेड मीनिंग है उसका, उतना ही मेरी ट्रांसलेटेड लैंग्वेज में भी आना चाहिए. I need to be honest, I need to be faithful to the original content. And thus, translation is a work of talent. It's not merely drawing from one word to another word in another language. It's a work of talent. It is industrious, very hard work is required, not physically, but mentally. Your brain works, your right brain and left brain, both works in translation. So it's a good exercise also. Translation is not mere interlingua transfer. एक भाषा से दूसरी भाषा में करना नहीं है. It involves command over languages and also knowledge in diverse field. Diverse field, knowledge of the subject, knowledge of terminologies, knowledge of culture, knowledge of history, along with the knowledge of computer. It's like being jack of all. आप मास्टर नहीं हैं तब भी चलेगा, but you need to be a jack, and the jack which is supreme in his abilities. मैं आपको ये डरा नहीं रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि ये करना जरूरी है if you are trying to be a professional translator. These are the things I think we have lost contact with Madam. Yes, ma'am, will you try to sum it up now? Yeah. You're not audible, ma'am. You're not audible. Yes, yes. Yeah, so that was my presentation, and that was what all I wanted to say about translation. You need to give time to learn translation, and it is not a thing that you started today and the evening you are going to be expert in it. So best of luck, and I hope you will find it very much enjoying process. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, ma'am. I mean, this was 2 or 3 couple of things. I mean, even I was thinking about, like I put it in the chat box also, whether this is how much of it will be a talent part and how much of it can go into training. I mean, share your own experience. I mean, are you a talented person or have you undergone some kind of training in this? No, actually, when I started doing translation back in 2003 or 4 something, then there were no courses as such or no training facilities available. Nowadays, universities like IGNOU, they do offer translation courses. So it's wise to go for translation courses, but at the same time, the practical is very important. Your thinking process is very important. Reading is very important. All the time you need to read. And the most fantastic thing is, जैसे बचपन में we do कि रास्ते से जाते समय we read जो
दुकान पर नाम लिखे होते हैं, वो हम पढ़ते जाते हैं. तो when you are learning translation, you can do the same. जो हम बोर्ड्स पढ़ते हैं उस पे जो लिखा होता है, अरे इसका हिंदी में क्या होगा, इंग्लिश में क्या होगा, then you will find translation interesting and it will help you a lot. Yes, of course, talent is there, but hard work and practice makes you perfect. Right, absolutely. And I think this is one area where the students can, if they want to enter into this field and take it up as a profession, they can do it on their own, sitting at home. Yes, yes, Nowadays yes. it's work from home, and Yes. I think there is no need for them to go and No. work in a team or work at any office. Right, right, so right. Girls can, while maintaining their families and all, can also pursue this as a career. Yes, yes, it's very, very good profession for girls or for anybody rather. No translator is required to go any office. Right. You can sit at your home, have your laptop, have your dictionaries, have your relevant material, and it's done. I think we'll take it up in the next session sometime. Sure. When we meet Yes, each yes, other, or definitely. we'll call you again on this platform, so I'll that be happy. we can ask you about how to approach these agencies, those who give us translation work. I mean, Yes, that definitely. is also that Yes, channel yes, also yes. should be known to the students. Yes. But before entering into this area, I think something that we had right in our first class, basics of writing and Yes. word power and vocabulary, that has to be enhanced. Otherwise, Definitely. it would become really difficult if you don't have a similar kind of a word. If you, like you very rightly said, that this one word support has got so many facets. I mean, Yes. have so many meanings hidden in that one word. Okay, so one has to understand what actually is required in this particular context. Right, very true. So this is a wonderful presentation from your side, ma'am. I really Thank you hope so the much. students are going to benefit and somebody takes it up as a profession also. I hope so Be too. very happy to Yes. have translators on our team. And thank you so much, ma'am. On behalf of the Department of English and the IQAC of my college, today is the last day of the COC of diploma course. And I look forward to welcoming all of you, the students as well as the resource persons, to this platform next year, which would be very soon, in a few months' time. Oh, sure. I love that. Thank you so much for it. Yes. Because if we are, we have translations, then, we'll like to have a live session, where Yes, you yes, will that will be actually more pick up a interesting. text and Yes, that will be translate. more interesting. Right. Then the students can interact with me or any resource person. That is the most wonderful thing that can happen while teaching or while explaining something. Right. So we'll have live demos in the next semester. Yes, ma'am. We'll keep that in mind, that students would be interested in this. Yeah. So at the end, I would like to thank the principal of my college, Dr. Sujit Maitre, who is the man behind this whole idea of having such fantastic topics, and we could, gather all the resource persons and give a glimpse of what writing can be to our students. So a big thank you to Principal Sir and the management, who has always been encouraging and has always guided us in the right path. My English department, the HOD of English department, Dr. Anil Shende sir, I'm thankful to him also, and all my colleagues out there. We all have been a good team, and henceforth also we'll bring such wonderful resource persons as Mrs. Rushali Deshpande to this platform. Thank you so much, everyone. Thank you so much. I'm honored and obliged, and I hope it was really useful for the students. Yes, absolutely, ma'am. Absolutely. Thank you so much, ma'am. Thank you, everyone. Thank you.